Starting with the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Dear students, welcome to the Quick Learn Academy by Arusairam. In today's lecture, we will do the Physics Grade 9th, it's unit number 5, and the topic is numerical problems. Dear students, now we have the first numerical problem, which is a force of 20 Newton acting at an angle of 60 degree to the horizontal is used to pull a box through a distance of 3 meter across the फ्लोर हाउ मच वर्क इज़ डन। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि आपने किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करना हो, फर्स्टली यू विल हैव टू extract the data, then you will have to know what should you have to find out, and after applying the relevant formula you will get your answer. So dear students, we have the first numerical problem, and here we have the given data in which यहाँ पे force है 20 न्यूटन। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स एंगल कितना दिया गया है, इट इज़ 60 डिग्री, और उससे आप पुश कर रहे हैं एक बॉक्स को फ्लोर के ऊपर, और वो जो बॉक्स है वो 3 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो आपने टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन बतानी है कि हाउ मच वर्क इज बीइंग डन। सो वी हैव एफ इज इक्वल टू 20 न्यूटन, थीटा इज इक्वल टू 30, एंड एस विच इज डिस्टेंस इज 3 मीटर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने वर्क डन फाइंड आउट करना है, सो वी विल अप्लाई द रेलेवेंट फार्मूला विच इज़ mentioned in the unit, and here we have W is equal to एफ एस cos थीटा। एफ की वैल्यू है 20, एस की वैल्यू है डियर स्टूडेंट्स 3, एंड थीटा जो है वो 60 है। एज cos 60 0.5, and after the multiplication of 20 with 3 you will get 60, and after the further multiplication of 60 with 0.5 you will get 30 joule. So you can write the result that 30 joule of work is done. Now dear students, we have the second numerical problem, which is the body moves a distance of 5 meter in a straight line under the action of force of 8 Newton. If the work done is 20 joule, find the angle which the force makes with the distance of motion of body. तो डियर स्टूडेंट्स, इस स्टेटमेंट को रीड आउट करने के बाद यू विल एक्सट्रैक्ट द डाटा कि यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो 5 मीटर है, इसके अलावा फोर्स 8 न्यूटन गिवन है, और वर्क डन कितना हुआ है 20 जाउल। सो यू कैन राइट एस इज इक्वल टू 5 न्यूटन, डब्ल्यू इज इक्वल टू 20 joule, and F is equal to 8 Newton, and you will have to find out the theta, and same likewise at the as the previous numerical problem you will have to apply the formula W is equal to fs cos theta। यहाँ W की वैल्यू 20 है, F is 8 and S is 5, and you will have to find out the value of theta, so you will have to write here the cos theta as it is। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे 8 5 ज़ा 40 आएगा, 40 मल्टीप्लाई हो रहा है, ऑपोजिट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। 21 ज़ा 20, 22 ज़ा 40, you will get 1/2 cos theta, or dear students 1/2 which is half you can write as 0.5 cos theta। आपने डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो जो यहाँ पे कॉस है वो ऑपोजिट साइड पे जाएगा, इट विल बिकम एज द कॉस इनवर्स 0.5, and after the calculation of shift cos 0.5 you will get the answer of theta as 60 degree। So dear students, you can also write the result as the theta required will be 60 degree। Now dear students, we have the 5.3 numerical problem, which is very easy. Here the statement is an engine raises 100 kilogram of water through the height of 80 meter in 25 second. What is the power of engine? So dear students, यहाँ पे हमारे पास kg जो है वो mass को represent कर रहा है, मीटर जो है वो हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है,
और यहाँ पे सेकंड, यहाँ पे कितना टाइम गिवन है 25 सेकेंड, एंड यू विल हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ बार. So you can write the data as m is equal to 100 kg, h is equal to 80 meter, and time is equal to 25 second. Now dear students, you will have to find out the value of power. और आपने students power का formula unit 5 में पढ़ा हुआ है, which is work done per unit time is known as the power. So P is equal to W over T. तो डियर स्टूडेंट्स देखें, यहाँ पे हमारे पास वर्क डन की वैल्यू नहीं है मेंशन. तो आप वर्क डन आपने पढ़ा हुआ है कि वर्क डन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी के की फॉर्म में, विच विल बिकम एज एम जी एच. तो पी की जगह पे डियर स्टूडेंट्स आप यहाँ पे W की जगह पे पुट कर देंगे एम जी एच, और T विल रिमेन एज इट इज़. एंड आफ्टर पुटिंग द रेलिवेंट वैल्यू ऑफ मास एज 100, जैसा कि स्टार्ट में बताया गया था, इसी तरह G जो है वो 10 होता है, एंड हाइट 80 है, और टाइम है 25. एंड आफ्टर द कैलकुलेशन यू विल गेट योर आंसर एज 3200 वाट. एज वी नो कि वाट जो है वो पावर का यूनिट होता है, सो डोंट फॉरगेट टू राइट द वाट at the after the numerical value of 3200. Now dear students, we have a 5.6 5.4 numerical problem, which is a body of mass 80 kgs at a rest. A 40 Newton force act on it for 5 seconds. What is the kinetic energy of a body at the end of this time? तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे mass देखिए फर्स्ट लाइन में गिवन है 20 kg, और इसके अलावा जो फोर्स है वो 40 न्यूटन है, टाइम 5 सेकेंड गिवन है. डियर स्टूडेंट्स, एक बॉडी जिसका मास 20 kg है वो पहले रेस्ट पे पड़ी हुई है. हेयर द वर्ड रेस्ट इज इंडिकेटिंग दैट वी कैन टेक द इनिशियल वेलोसिटी एज 0 मीटर पर सेकेंड. और डियर स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. एज वी नो के काइनेटिक एनर्जी uh, is the energy which possessed by a body due to the motion is known as the kinetic energy. और आपने बुक में डियर स्टूडेंट्स फॉर्मूला पढ़ा हुआ है हाफ एम वी स्केयर. तो देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास मैथ्स 20 गिवन है, लेकिन यहाँ पे हमने वी फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू को फाइंड आउट करके यहाँ पे पुट करना है. देखें स्टूडेंट्स, बॉडी स्टार्ट में रेस्ट पे थी तो हमने वी आई ज़ीरो लिया. तो पहले हम डियर स्टूडेंट्स जो वी एफ है उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं. फॉर दिस यू विल हैव टू यूज़ द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, विच इज़ एफ इज़ इक्वल टू एम ए. और देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे एफ की वैल्यू मेंशन है 40, m is 20, 20 ones are 20, 22s are 40. You will get the value of acceleration as 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर. एंड यू नो कि जब हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाए तो आप फाइनल वेलोसिटी को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. इट इज़ वेरी इजी. इसके लिए आपने डियर स्टूडेंट्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है उसको अप्लाई करना है, विच इज़ वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी. वी आई की जगह पे ज़ीरो आ जाएगा, ए इज़ 2 एंड टी इज़ 5. एंड आफ्टर द मल्टीप्लीकेशन ऑफ 5 with 2 you will get 10 मीटर पर सेकेंड. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मीटर पर सेकेंड आएगा, स्केयर नहीं आएगा. तो देखें स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो हाफ एम वी स्केयर तो है, बट यहाँ पे कौन से वाली वेलोसिटी आएगी, वी एफ वाली. तो वी एफ को हमने फाइंड आउट कर लिया, विच इज़ 10. नाउ यू कैन सिंपली पुट द वैल्यूज ऑफ एम एंड वी, विच आर 20 and 10. And after the simplification you will get the answer, which is 1000 joule. So you can write the result at the last as the kinetic energy possessed by the body will be 1000 joule. तो देखें डियर स्टूडेंट्स, दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इजी. आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना. बहुत सारे स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करेंगे कि जो यहाँ पे
रेस्ट वाली वेलोसिटी गिवन है, इसी को ही हाफ एम वी स्केयर वाले में पुट डाउन करके और रॉन्ग आंसर ले आएंगे। तो आपने याद रखना है कि आपने यहाँ पे फाइनल वाली वेलोसिटी को पुट डाउन करना है। उसके लिए आपने पहले एफ इज इक्वल टू एम ए एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करना है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को पुट डाउन करते हुए आप वी आई की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे, वी एफ की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे और आपने वही वैल्यू इस फॉर्मूला में अप्लाई करनी है। देन यू कैन गेट द करेक्ट आंसर विच इज़ 1000 joule. Now, dear students, we have the 5.5 numerical problem, which is a ball of mass is 160 gram is thrown vertically upward. The ball reaches of at a height of 20 meter. Find the potential energy gained by the ball at this height. तो डियर स्टूडेंट्स देखिए स्टेटमेंट में हमारे पास मैथ्स जो है वो ग्राम्स में गिवन है। तो आपने डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे मैथ्स 160 ग्राम पुट डाउन करना है। इसको किलोग्राम में करने के लिए 1000 पे आप डिवाइड कर देंगे। देन यू विल गेट 0.16 kg और हाइट की वैल्यू 20 मीटर गिवन है। तो डियर स्टूडेंट्स आपने पोटेंशियल एनर्जी जो है वो फाइंड आउट करनी है, जिसे आप पी डॉट टी या ई पी के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इट इज़ वेरी सिंपल एज यू नो के जो पोटेंशियल एनर्जी है इट इज़ द एनर्जी which is possessed by a body due to its position or height. और आपने चैप्टर में इसका फॉर्मूला भी पढ़ा हुआ है विच इज़ ई पी इज इक्वल टू एम जी एच। मैथ्स की जगह पे 0.16 आएगा, जी की जगह पे 10 और एच की जगह पे 20 एंड आफ्टर द मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑल दीज थ्री वैल्यूज you will easily get 32 joule. So you can write the potential energy gained by the ball will be 32 gram and 32 joule. Now, dear students, we have the 5.6 numerical problem, which is a 0.14 kilogram ball is thrown vertically upward with an initial velocity of 35 meter per second. Find the maximum height reached by the ball. तो देखें डियर स्टूडेंट्स एक बॉल है जिसका मास 0.14 kg है। तो आप सबसे पहले देखें स्टूडेंट्स मास की वैल्यू को